Hello students, how are you? I hope you all are good at your home and also studying. So today we are going to start a new lesson in 5th class English Gulmohar, that is unit 8, and the name of the lesson is Demosthenes. Okay, so name of the lesson is Demosthenes. So get ready with your book and open page number 73. So, students, in this lesson, the story of the Demosthenes' evolution as an orator is especially notable because he was not a naturally talented or confident speaker as a youth, but rather a relatively poor one. He gained his reputation mainly through hard work and improved his speaking abilities by various methods such as shouting, to be heard about the crashing of the ocean waves and spending many hours in his studio preparing his speeches. So now students, I am going to give a short summary of this lesson. So, in this chapter, we see Demosthenes fighting out all his outs and overcoming all his shortcomings to become one of the best orators of the world. In his childhood, he had to face a number of financial difficulties. After his father's death, his guardians and relatives took away all his money. He fought back and revived a low amount after defeating them in the court of law. We see him giving his first speech, which turned out to be a disastrous one. His second speech was a disaster too, but after his second speech, he was advised by Satyrus, who was a theatre actor, on how to give a proper speech. After speaking to Satyrus, Demosthenes realized that he should give his speech with a full of emotions so that it's not boring and it's moving for the spectators. Finally, Demosthenes learned the correct way to give his speech publicly. So now students, I will explain you the story in Hindi also. If at first you do not succeed, try again. This piece of advice has helped many people achieve their dreams. अगर आप एक बार में सफल नहीं होते हो, सक्सीड नहीं होते हो, तो आपको बार बार ट्राई करना चाहिए, फिर से प्रयत्न करने चाहिए। ऐसी सलाह ऐसी सलाह को बहुत लोगों ने अपनाया है। इस सलाह को बहुत लोगों को मतलब हेल्प हुआ है इस सलाह से, और उनके सपने साकार हुए हैं। हाउएवर डिफ़िकल्ट दे माइट हैव अपीयर्ड, भले ही वो कितना ही डिफ़िकल्ट हो। डेमोस्थेनेस वॉज बोर्न विद अ सीवियर स्पीच प्रॉब्लम। डेमोस्थेनेस नाम का जो एक व्यक्ति था, वो भी एक बहुत ही कठोर स्पीच प्रॉब्लम थी उसे। एंड बट इट डिड नॉट डिस्करेज हिम, लेकिन वो डिस्करेज नहीं हुआ, वो निराश नहीं हुआ। ही प्रैक्टिस्ड हार्ड एंड बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओरेटर्स ऑफ हिज टाइम। उसने बहुत ही प्रैक्टिस की और एक बहुत बड़ा ओरेटर बन गया उसके टाइम का। ओरेटर्स मीन्स पीपल हु मेक स्पीचेस इन पब्लिक एंड आर वेरी गुड स्पीकर्स। पब्लिक के सामने, लोगों के सामने जो अपनी स्पीच दे सकता है, कुशल सार्वजनिक वक्ता। So, as a boy, Demosthenes was shy and delicate. जब डेमोस्थेनेस छोटा लड़का था, तब बहुत ही शर्मीला था और डेलिकेट था। डेलिकेट मीन्स कमज़ोर था। When he made his first public speech, his voice was weak and his words were not clear. जब उसने पहली फर्स्ट पब्लिक स्पीच दी, तो उसकी वॉइस बहुत ही वीक थी, कमज़ोर थी, और उसके जो शब्द थे वो भी क्लियर नहीं थे। ही स्टैमर्ड मीन्स हकलाना, वो हकलाने लगा। स्पोक विथ पॉजेस, रुक रुक कर बोलना। रिपीटिंग द सेम साउंड, बार बार एक ही साउंड रिपीट करना, तो वो हकलाता भी था। ही कुड हियर पीपल लाफ एंड जियर एट हिम। वो देख सकता था कि लोग उस पर हंस रहे हैं और जियर कर रहे हैं। जियर ने किसी पर हंसना या चिल्लाना। ओके। ही ट्राई टू प्रेस ऑन बट हैड टू स्टॉप हिज स्पीच एंड लीव। वो कोशिश करता कि वो आगे बोले, लेकिन उसे अपनी स्पीच को वहीं रोकनी पड़ती थी और जाना पड़ता था। Demosthenes could not bear the thought that people found his speech strange and funny.
डेमोस्थेनेस को ये सहन नहीं होता था कि लोग उसकी स्पीच को अजीब और फनी मतलब मजाकिया समझे। ही न्यू ही नीडेड टू डू समथिंग अबाउट इट। वो जानता था कि उसे कुछ करना पड़ेगा। एंड सो बिगेन अ जर्नी विच मेड हिम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एथेनियन ऑरेटर्स। और उसने अपनी यात्रा शुरू कर दी, जिसके बाद वो बहुत ही बड़ा एथेनियन ऑरेटर बन गया। एथेनियन नहीं, एथेन के लोगों के सामने। डेमोस्थेनेस फादर वॉज अ वेल्दी स्वॉर्ड मेकर इन एथेंस। डेमोस्थेनेस के जो फादर थे वो बहुत ही वेल्दी स्वॉर्ड मेकर थे। एथेंस के स्वॉर्ड मेकर यानी तलवार बनाने वाले। ही हैड डाइड व्हेन हिज सन वॉज 7 years old। डेमोस्थेनेस के फादर तब गुजरे जब डेमोस्थेनेस खुद 7 साल का था। Although his father left him a fortune, Demosthenes' guardians were not careful with his money. Demosthenes के फादर बहुत सारा पैसा छोड़ के गए, लेकिन डेमोस्थेनेस के जो गार्जियंस थे, जो उसके अंकल और आंटी थे, वो उस पैसे से केयरफुल नहीं थे। दे लॉस सम ऑफ इट। उन्होंने बहुत पैसा तो गंवा दिया। एंड स्पेंड सम ऑन देमसेल्स। और कुछ पैसा उन्होंने खुद के ऊपर खर्च कर लिए। इन द एंड दे डिड नॉट हैव इनफ मनी टू गिव हिम अ गुड एजुकेशन। और आखिर में उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं था कि डेमोस्थेनेस को अच्छी शिक्षा दे सके। डेमोस्थेनेस वॉज एंग्री विथ हिज गार्जियंस। डेमोस्थेनेस उनके अंकल आंटी के से बहुत ही नाराज़ था। वॉज देयर अ वे ही कुड मेक देम फील सॉरी। क्या ऐसा कुछ हो सकता था कि वो उनसे सॉरी फील कर सके। He may not have known then that it was learning to speak that would help him. Athens then had some great orators. Athens में बहुत सारे अच्छे orators भी थे. Demosthenes had often heard his teachers talk about them. Demosthenes ने अपने टीचर से सुना था उनके बारे में, and he longed to listen to their public speeches. और वो उनकी जो speeches, public speeches थी, वो सुनना चाहता था. One day, not long after that, he heard that Callistratus, an orator who admired everyone, was to speak at a great trial that was taking place in the city. एक दिन उसने कैलिस्ट्रेटस के बारे में सुना। एक बहुत ही बड़ा ऑरेटर है जिसकी सब लोग प्रशंसा करते थे। वो एक ट्रायल देने वाला था उस सिटी में। डेमोस्थेनेस हर्ड पीपल टॉक अबाउट कैलिस्ट्रेटस। डेमोस्थेनेस ने लोगों को ये कहते हुए सुना कि कैलिस्ट्रेटस एंड begged his tutor to allow him to in the courtroom when he spoke. Demosthenes heard people talk about Callistratus. Okay. सो कैलिस्ट्रेटस ने सुना कि लोग है ना कैलिस्ट्रेटस के बारे में बात कर रहे थे और है ना ट्यूटर के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उसे भी कोर्ट रूम में जाने दें और जब वो कैलिस्ट्रेटस स्पीच देगा। तो ट्यूटर एग्रीड हो गया और उसने अरेंज कर दिया डेमोस्थेनेस के लिए सीट अरेंज कर दी जहाँ से वो सुन सकता है और देख सकता है। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज। So, the speech was full of power and purpose. Speech full of power भरी थी, power से भरी हुई थी और purpose से भी भरी हुई थी. It means it had a clear message दे रहा था and made a strong effect on public's mind. मतलब लोगों के दिमाग पे बहुत ही गहरा असर पड़ा था. When Callistratus had finished, the Athenians crowded round him and many even followed him home. जब कैलिस्ट्रेटस ने अपने स्पीच को फिनिश कर दिया तो एथेंस के लोग उसके पीछे पीछे चले गए, भीड़ इकट्ठा कर ली और बहुत लोग तो उसके पीछे पीछे घर तक चले गए। डेमोस्थेनेस वॉज इम्प्रेस्ड एंड इंस्पायर्ड। डेमोस्थेनेस भी बहुत इम्प्रेस हुआ उनकी स्पीच से और इंस्पिरेशन मिला, उन्हें प्रेरणा मिली। He said to himself, I too will be an orator and make people think about what I am saying. तो डेमोस्थेनेस भी अपने आप को कहता है कि मैं भी एक अच्छा ऑरेटर बनूंगा और मेक पीपल थिंक अबाउट व्हाट आई एम सेइंग, और मैं लोगों को सोचने पर मजबूर कर दूंगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। आई वॉन्ट टू हैव द पावर ऑफ वर्ड्स टू मेक पीपल एग्री विथ मी एंड बिलीव मी।
मुझे पावर चाहिए, पावर ऑफ वर्ड्स चाहिए ताकि मैं लोगों को एग्री कर सकूं और वो मुझ पे विश्वास कर सके। इन हिज हार्ट ही ऑल्सो थॉट मे बी दिस स्पेशल टैलेंट विल ऑल्सो हेल्प मी फाइट अगेंस्ट द इनजस्टिस माई गार्जियंस हैव डन टू मी। अपने दिल में वो कहता है कि भले ही मे दिस स्पेशल टैलेंट विल ऑल्सो हेल्प मी, ये जो स्पेशल टैलेंट है वो भी मुझे हेल्प करेगा मुझे लड़ने के लिए, जो अन्याय मेरे गार्जियंस ने मेरे साथ किया है, जो उनके अंकल आंटी ने उनके साथ किया है। डेमोस्थेनेस न्यू दैट ही मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड। डेमोस्थेनेस जानता है कि उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। फॉर द नेक्स्ट 2 years, अगले 2 साल तक, ही रीड हिस्ट्री, रोड स्पीचेस एंड लिसन टू फेमस ऑरेटर्स। उसने हिस्ट्री पढ़ा, बहुत सारी स्पीचेस लिखी और बहुत सारे ऑरेटर्स की, फेमस ऑरेटर्स को भी सुना। When he was 18, he believed he was ready to speak in public. जब वो 18 वर्ष का हुआ तो उसको विश्वास हो गया कि अब वो पब्लिक के सामने बोल सकता है। He decided to fight against his guardians in the court of law. उसने डिसाइड कर लिया कि कोर्ट ऑफ लॉ में जाके, मतलब कोर्ट में, वो गार्जियंस के खिलाफ लड़ेगा। एट फर्स्ट नो वन टुक हिम सीरियसली बट डेमोस्थेनेस प्लीडेड हिज केस अगेन एंड अगेन। शुरुआत में तो किसी ने भी सीरियसली नहीं लिया, लेकिन फिर डेमोस्थेनेस प्लीडेड हिज केस मीन्स आर्ग्यूड इन द कोर्ट ऑफ लॉ टू प्रूव दैट हिज गार्जियंस हैड बीन अनफेयर टू हिम। मतलब कोर्ट में उसने आर्ग्यूमेंट किया कि उसके जो गार्जियंस है, उसकी जो अंकल आंटी है, उन्होंने उसके साथ अच्छा नहीं किया। In the end, he won, and his guardians were ordered by the court to return his money to him. आखिर में वो जीत गया और उनके गार्जियंस को कहा गया, ऑर्डर दिया गया कि जो भी पैसा उनके पास है वो डेमोस्थेनेस को लौटाया जाए। बट इट वॉज टू लेट, देर वॉज वेरी लिटल मनी लेफ्ट टू रिकवर। लेकिन बहुत लेट हो चुका था, अब उनके पास बहुत कम पैसा बचा था। वंस मोर डेमोस्थेनेस फेल्ट ग्रेट सैडनेस एंड एंगर। एक बार फिर डेमोस्थेनेस बहुत ही दुखी हो गया, बट ही वुड नॉट गिव अप एंड वेंट ऑन टू स्पीक इन द असेंबली ऑफ द एथेंस। लेकिन उसने हार नहीं मानी और चला गया असेंबली, एथेंस की असेंबली में। असेंबली मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, मीटिंग फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, किसी खास चीज़ के लिए इकट्ठे होते हैं, वहाँ पे वो चला गया। बट हिज फर्स्ट एड्रेस वॉज अ फेलियर। उसकी जो पहली स्पीच थी वो फेलियर यानी वहाँ पे वो नहीं बोल पाया। ही न्यू इट फ्रॉम द फेसेस ऑफ द पीपल अराउंड हिम एंड वॉज फील्ड विद शेम। उसे कैसे पता चला? जो लोग उसके आसपास खड़े थे उसकी वजह से पता चल गया, उनके फेस से पता चल गया। एंड वॉज फील्ड विथ शेम, और वो शर्म के मारे उसको शर्म आने लग गई। दिस इज श्योरली द लास्ट टाइम आई स्पीक इन पब्लिक, ही थॉट सैडली। वो दुखी होकर कहता है कि ये दिस इज श्योरली द लास्ट टाइम आई स्पीक इन पब्लिक, इस अब ये लास्ट टाइम है कि मैं पब्लिक में बोलूँगा। He left the assembly and walked slowly down the road without realizing where he was going. वो असेंबली छोड़कर चला गया और चलता गया और उसको पता नहीं कि उसे कहाँ जाना है। Suddenly he felt someone touch his arm. अचानक उसे एहसास हुआ कि उसके कंधे पे किसी ने टच किया है। It was an old man who had heard him speak in the assembly. कौन वो? एक ओल्ड आदमी था, बूढ़ा आदमी था, जिन्होंने उसको सुना था असेंबली में। He had seen how sad and disappointed Demosthenes was. उस बूढ़े से आदमी ने डेमोस्थेनेस को देखा था कि वो कितना दुखी था, निराश था। He looked at him keenly and praised him. उन्होंने उसे बहुत ही तीखी नज़र से देखा और उसको प्रेज़ किया। प्रेज़ मीन्स उसको शाबाशी दी। ही टोल्ड हिम दैट अ स्पीच रिमाइंडेड हिम ऑफ द ग्रेट ओरेटर पेरिकल्स। तो वो कहते हैं कि मुझे तुम्हारी स्पीच से एक बहुत ही बड़े ओरेटर की याद दिलाता है, पेरिकल्स की। हाउ कैन यू गिव अप सो इजली डेमोस्थेनेस? तुम ऐसे कैसे छोड़ सकते हो, ऐसे कैसे निराश हो सकते हो? ही आस्क। डेमोस्थेनेस फेल्ट एनकरेज एंड ट्राइड अगेन। डेमोस्थेनेस को थोड़ा सा साहस आया, थोड़ी सी हिम्मत आई और उसने फिर से ट्राई किया। बट ही फेल्ड अ सेकेंड टाइम, लेकिन वो दूसरी बार भी हार जाता है। दिस टाइम ही लेफ्ट द असेंबली। इस बार उसने असेंबली छोड़ दी। हाइडिंग हिज फेस इन हिज क्लॉक, उसने अपने क्लॉक में अपना फेस छुपा लिया, कपड़ों में छुपा लिया। एन एक्टर नेम सैटिरस हु न्यू हिम अ वेल फॉलोड हिम। एक एक्टर था सैटिरस नाम का,
वो उनसे जानता था, उसके पीछे पीछे गया। ही न्यू दैट डेमोस्थेनेस वुड बी इन डिस्पेयर, उस वो जानता था कि डेमोस्थेनेस बहुत निराश हो चुका है, इसलिए वो उसके पीछे पीछे जाता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज। So Demosthenes did not hide his feelings from Satyrus. Demosthenes अपनी जो फीलिंग्स है वो सैटरस से नहीं छुपा पाया। A sailor with the full story will make them applaud. एक जो सेलर होता है जिसके पास एक फुल स्टोरी है, मूर्खता भरी स्टोरी है, वो उससे कोई अपलॉड नहीं मिलता, कोई उससे पे तालियां नहीं बजाएगा। वाइल इफ़ आई टेल देम टेल्स ऑफ द ग्लोरियस डीड्स ऑफ देयर ओन कंट्रीमैन दे डू नॉट केयर, भले ही मैं उन्हें उनकी ग्लोरियस डीड्स, बहुत अच्छे कार्य की जो कहानी सुना दूंगा उनकी कंट्री की, तो भी वो लोग परवाह नहीं करेंगे। ही सेड बिटरली, उसने क्रोध और निराशा से ऐसा कहा। ट्रू डेमोस्थेनेस आंसर्ड सैटिरस, तो सैटिरस ने कहा हाँ सही बात है, बट आई विल टेल यू व्हाई इट इज़ सो इफ़ यू विल रिसाइट टू मी सम लाइन्स फ्रॉम वन ऑफ आवर ग्रेट पोएट्स। वो कहता है कि हाँ, लेकिन अगर आई विल टेल यू व्हाई इट इज़ सो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि ऐसा क्यों है। इफ़ यू विल रिसाइट टू मी, अगर तुम मेरे साथ साथ रिसाइट करोगे कुछ लाइन्स फ्रॉम वन ऑफ आवर ग्रेट पोएट्स, एक बहुत अच्छी पोएट से रिसाइट करोगे, तो देन डेमोस्थेनेस रिसाइटेड सम पोएम्स टू हिम, डेमोस्थेनेस ने कुछ पोएम्स रिसाइट की। ही स्पोक द वर्ड्स करेक्टली, उसने जो सारे वर्ड्स करेक्टली कहे बोले, बट हिज वॉइस वॉज डल, उसकी जो वॉइस थी बहुत ही डल थी। देर वॉज एक्वर्डनेस इन द वे ही डिलीवर्ड द स्पीच, उसकी जो स्पीच, उसकी जो उसने स्पीच डिलीवर की थी वो कुछ बेढंगी थी। Then Demosthenes finished. When Demosthenes finished, Satyrus repeated the lines back to him. जब Demosthenes ने फिनिश कर दिया तो Satyrus ने फिर से उसकी लाइन रिपीट करी। Demosthenes stood still with surprise. Demosthenes वहीं पे खड़ा रहा सरप्राइज से, चौंक गया। ही कुड नॉट बिलीव दैट दे वर द सेम लाइन्स, वो बिलीव नहीं कर पाया कि ये वही सेम लाइन्स है। द एक्टर्स आइज फ्लैश्ड, हिज वॉइस रोज एंड फेल एंड हिज बॉडी स्वेड एज ही स्पोक। एक्टर्स की आइज फ्लैश होने लग गई, मतलब चमकने लग गई, उसकी वॉइस बढ़ने लग गई और उसकी बॉडी स्वे होने लगी जैसे ही वो बोलता है। डेमोस्थेनेस अंडरस्टूड व्हाई हिज स्पीचेस डिड नॉट इंटरेस्ट द एथेनियंस, डेमोस्थेनेस को समझ में आ गया कि उसकी जो स्पीच है वो लोगों को मतलब उनमें इंटरेस्ट क्यों नहीं आता है। ही रियलाइज दैट ही मस्ट नॉट ओनली रीड और रिसाइट दैम बट ऑल्सो एक्ट दैम, उसे एहसास हो गया कि सिर्फ उसे रीड या रिसाइट नहीं करना है, पढ़ना नहीं है, बोलना नहीं है, बट उसके साथ उसको एक्ट भी करना है। फ्रॉम दैट डे ऑन डेमोस्थेनेस बिगिन टू वर्क इन अ डिफरेंट वे, अब उसी दिन से डेमोस्थेनेस अलग तरह से काम करने लग गया। ही कन्वर्टेड वन ऑफ द सेलर्स ऑफ हिज हाउस इनटू अ स्टडी, उसने क्या किया, एक जो सेलर था उसके घर में, एक तहखाना था, उसने उसको स्टडी रूम बना लिया। देयर ही प्रैक्टिस अनडिस्टर्ब्ड, वहाँ पे वो सारे दिन प्रैक्टिस करता था बिना कोई डिस्टर्बेंस के। ही ऑफन लिव्ड इन हिज स्टडी फॉर 2 to 3 months एट अ स्ट्रेच, वहाँ पे वो अपनी स्टडी रूम में 2-3 महीने तक रहता था। They say he went to the seashore and shouted his speech with pebbles in his mouth. वह कहते हैं कि वो सी शोर पे, समुद्र किनारे चला जाता था और वहाँ पे स्पीच को चिल्लाकर बोलता था, अपने मुंह में पेबल्स डाल के, मतलब पत्थर डाल के गाता था। इट मेड हिम स्ट्रगल टू ब्रिंग आउट एवरी साउंड, इससे उसने बहुत ही मेहनत की। सो व्हेन ही स्पोक विदाउट द स्टोन्स, जब वो बिना स्टोन्स के वो बोलता था, द वर्ड केम थ्रू लाउड एंड क्लियर, तो उसके मुंह से जो शब्द निकलते थे वो बहुत ही लाउड, जोर से और क्लियर निकलते थे। ही वॉच हिमसेल्फ इन द मिरर एज ही स्पोक टू इम्प्रूव हिज एक्सप्रेशंस, जब वो बोलता था वो मिरर में देखकर बोलता था ताकि उसके जो एक्सप्रेशंस है वो भी इम्प्रूव हो सके। गैस्चर्स एंड एक्शंस, उसके जो एक्शन है, उसके जो गेस्चर्स हैं, अंग संकेत, मतलब हाथ से मुंह से बोलना, संकेत देना, तो वो सब वो अब मतलब अपने मिरर में देखता था बोलते बोलते। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज। सो ही प्रैक्टिस स्पीकिंग एज ही वॉक और रन अलॉन्ग द सी शोर, वो कैसे प्रैक्टिस करता था, ही प्रैक्टिस स्पीकिंग, मतलब बोलते बोलते, मतलब चलते चलते या दौड़ते दौड़ते समुद्र के किनारे वो स्पीक करता था, बोलता जाता था, अपनी स्पीचेस बोलता था। ही रेज हिज वॉइस सो दैट ही कुड बी
हर्ड ओवर अ रोरिंग वेव्स, वो इतनी ज़ोर से अपनी वॉइस निकालता ताकि जो रोरिंग वेव्स में भी वो सुन सके। ही ऑल्सो प्रैक्टिस स्पीकिंग एज ही रैन अप द हिल, वो मतलब पहाड़ियों पे चढ़ते चढ़ते भी प्रैक्टिस करता था। ऑल दिस ट्रेन हिज ब्रीथ वॉइस एंड टोन, सब इन सभी की वजह से जो उसकी ब्रीथ है, वॉइस है, टोन है, सब अच्छे से करने लग गई। डेमोस्टेनेस स्पीचेस पर नाउ फिल्ड विद ड्रामा एंड पर्पस, उसकी जो स्पीचेस थी अब वो पूरी नाटक और पर्पस से भरी हुई थी। ओके पूरा एक्साइटमेंट था, उसकी जो स्पीच थी वो पूरी एक्साइटमेंट से भरी हुई थी। नाउ हिज स्पीचेस वेर नॉट डल। नाउ ही वॉज नो लॉन्गर द बॉय हु वॉज शाय एंड स्पोक विद अ स्टैमर, ना अब वो ये लड़का नहीं था जो शर्माए और जो हकलाकर बोले। नाउ ही कैन स्पीच वेरी well. Okay, now so student, this is the end of the story. I hope you have understood this lesson. Okay, so read this lesson again. Okay, goodbye.